اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ مکمل دین ہے، جو زندگی کے ہر گوشے کے تعلق سے رہنمائی کرتا ہے، اور جو رسول ہمارے لیے مبعوث فرمایا ہے وہ قیامت تک کے لیے تمام مومنوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی سنت میں زندگی کے ہر گوشے کے تعلق سے رہنمائی موجود ہے، معاشرے کے ہر فرد کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل موجود ہے۔ جہاں ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت سخی تھے، اللہ کے راستے میں بڑھ کر کے خرچ کرنے والے تھے، آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو نہ کا جواب نہیں دیا ہے۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو بھی اس بات پر ابھارا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لے، بلکہ دل کھول کر خرچ کرے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، یا ابن آدم انفق علیہ، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے پر خرچ کروں گا۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو ان کی عزت نفس، ان کی خودداری کی حفاظت کی تعلیم دیتے ہوئے سوال کرنے سے، مانگنے سے، بھکاری کا پیشہ اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور روکا ہے، الا یہ کہ بہت سخت ضرورت، ورنہ ایک طرفہ لوگ اللہ کے وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں کہ اللہ اسلام کے اندر خرچ کرنے پر خوب ابھارا گیا ہے، اور الحمدللہ مسلمان جہاں رہتے بستے ہیں ان کے جذبے صدقہ و خیرات کو دیکھ کر کے بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہاتھ پھیلانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آئے دن ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے کیسے نقلی لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والے کے تعلق سے کیا تعلیمات دی ہیں اس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھیک مانگنے والوں کے ساتھ کیسا تھا۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی لوگ سوال کرنے کے لیے آتے تھے تو اللہ کے وسلم ان کے تعلق سے بھی انہیں نصیحت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے بخاری مسلم کے اندر کہ ایک بار کچھ انصار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، انہوں نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا آپ نے دے دیا، پھر سوال کیا، پھر اللہ کے رسول نے دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اور کہا کہ دیکھو، ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میرے پاس جو بھی خیر ہوگا، جو بھی بھلائی ہوگی، جو کچھ بھی میرے پاس رہے گا میں تم سے چھپا کر کے، ذخیرہ کر کے نہیں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قدر فقیر فیاض تھے کہ ذخیرہ کر کے رکھنا، چھپا کر کے مال کو رکھنا، بینک بیلنس کرنا یہ آپ کی عادت ہی نہیں تھی، اصل خود ہی بغیر سوال کے بھی آپ دیتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے بار بار آپ سے تقاضا کیا، آپ سے مانگا، تو اصل نے وضاحت کی کہ دیکھو میرے پاس جو کچھ بھی رہے گا میں تم سے چھپا کر کے نہیں رکھوں گا، میں ذخیرہ کر کے نہیں رکھوں گا، میں خود تمہیں دے دوں گا۔ لیکن یاد رکھو، مانگنے کی عادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سمجھایا کہ اچھی عادت نہیں ہے، آپ نے کہا کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی پاک دامنی اختیار کرتا ہے، بچنا چاہتا ہے سوال سے، تو اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے۔
जो खुद अपने आप को बचाना चाहेगा तो अल्लाह ताला उसे बचाता है। वमन यस्तगनी युगनिहिल्लाह, जो लोगों से बेनियाज होना चाहता है, लोगों के पास क्या होगा वो नजर नहीं उठाना चाहता, बस अल्लाह की तरफ जो मिल जाए उसको खैरात करना चाहता है, तो अल्लाह उसको बेनियाज भी कर देता है। वमन यतसब्बर युसब्बिहुल्लाह, और जो सब्र का रास्ता इख्तियार करता है, सब्र करना चाहता है, तो अल्लाह उसे सब्र की तौफीक देता है। और फिर आपने आखिर में फरमाया वमा उतिया अहदुन अताअन खैरन व औसा मिन अस्सब्र, कि इस कायनात में जिसको जो भी नेमतें मिली हैं, जो भी अतियात अल्लाह की तरफ से मिले हैं, सबसे ज्यादा खुशादा और सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा बेहतर कोई आतिया किसी को नहीं मिला है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर सब्र करने पर उभारा कि इंसान को चाहिए कि वो कोशिश करे जहां तक हो सके जितना कुछ अल्लाह ने दिया उसी में काम चलाए, लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचे, लोगों से शिकायत करने से बचे, लोगों के माल पे नजर रखने से बचे, और सब्र का दामन थामे। सब्र सिर्फ यही नहीं कि इंसान मुसीबत में सब्र करे, परेशानी में, बीमारी में सब्र करे, बल्कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माली तंगी उसके ऊपर रखी है तो उस तंगी में अपना काम चलाए और अपने हाथ को रोक के रखे, लोगों के सामने ना फैलाए, ये भी सब्र है। इस हदीस से वाज़ेह होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र सबसे बेहतर अतिया है और सबसे कुशादगी वाला है, क्योंकि आप कुरान करीम की एक आयत पर गौर करें कि अल्लाह ने वादा किया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हो उसे फिर और किस चीज की हाजत हो सकती, लेकिन बंदे को चाहिए कि पहले सब्र का रास्ता तो इख्तियार करे, सब्र का मुजाहिरा तो करे, सब्र करके तो दिखाए, सब्र का सबूत तो पेश करे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद, अल्लाह की मईयत उसके साथ क्या जलवा दिखाती है वो इंसान मुशाहिदा कर सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर सहाबा किराम को नसीहत की। तो पता ये चला कि जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपको ये तालीम दी है कि हम खुद से अगर सब्र करना चाहेंगे, खुद से सवाल से बचना चाहेंगे, खुद से बेनियाजी का रास्ता इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह हमें वही हमारे लिए मुहैया कर देगा, हमारे लिए वही आसानी पैदा कर देगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर बंदे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं रखी। आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं अल्लाह ताला वो रास्ता आपके लिए आसान कर देता है। अगर हम मेहनत मशक्कत अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं तो अल्लाह आपकी वो रास्ता खोल देगा। अगर हम मांग कर खाना चाहते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाना हमें अच्छा लगता है, हम वही आसान समझते हैं, तो अल्लाह वही रास्ता हमारे लिए खोल देता है और फिर इंसान निकल नहीं पाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जिस राह बंदा उस राह मौला, आप जो रास्ता अपने मुंतखब करेंगे अल्लाह ताला वही रास्ता आपके लिए आसान कर देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें अपने उम्मत के अफराद की खुददारी की कैसी हिफाजत की है कि लोग अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए मेहनत मशक्कत करें लेकिन किसी सामने हाथ न फैलाएं। एक मौके पर आपने फरमाया, ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है, जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी, आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अन याखुज़ अहदुकुम हबलतन फयहतसिबा अला ज़हरिही खैरुन लहू मिन अन यातिया रजुलन यसअलहु आताहु औ मनाअहु। आपने फरमाया कि एक बंदा, एक आदमी रस्सी उठाए, जंगल में जाए, लकड़ियां काटे, लकड़ियां काट कर गट्ठर बनाकर अपनी पीठ पर लाद करके लाए और उसे बेच कर अपनी जरूरत पूरी करे, ये इस बात से बेहतर है कि लोगों के सामने हाथ फैलाए, लोग उसे दें या उसे मना कर दें। लोग सामने हाथ फैलाए फिर लोग उसे रहम खाते हुए, तरस खाते हुए उसके हाथ में कुछ रखें या उसे वापस लौटा दें। आप सोचें कितनी जिल्लत की बात है और किस तरह अपने खुददारी नफ्स को कसौदा करने की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस पर उभारा है कि लोगों सामने हाथ फैलाने से बचो। कोई भी मेहनत करना पड़े तो मेहनत करो, यहां तक कि अगर तुम्हें रस्सी ले कुछ नहीं काम मिलता है, रस्सी लो, जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और ला करके बाजार में बेच कर अपनी जरूरत पूरी करो। यानी मामूली चीज भी अगर बेचनी पड़े तो बेच करके जरूरत पूरी करो।
اور انبیاء کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو انبیاء نے کسی بھی کام کو بھی چھوٹا نہیں سمجھا، جس کے سامنے جو بھی کام آیا انہیں کیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہے. ہر نبی نے بکری چرائی ہے. یہاں تک کیا فرمایا کہ میں نے بھی مکہ کے لوگوں کو بکریاں چرائی مزدوری پر، چند قیرات اور مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو ہر نبی نے اپنے گزر اوقات کے لیے کچھ نہ کچھ پیشہ اختیار کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر جو ہٹے کٹھے ہیں، جن کے بدن میں اللہ نے طاقت دی، ہاتھوں پیروں میں طاقت دی ہے، ایسے نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلانے سے، لوگوں کے اوپر ڈپینڈ رہنے سے بہت سختی سے منع کیا ہے. اور آپ نے انہیں کما کر کھانے کی رغبت دلائی، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1433 ہے، 1633 ہے، اور اسی طرح سے نسائی کے اندر حدیث نمبر 2598 کہ عبداللہ بن عدی بن خیار یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے دو آدمیوں نے اپنا واقعہ سنایا جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 67 ہجری میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے. لوگ آ رہے تھے، لے رہے تھے، صدقے کا مال اللہ کے وسلم بیٹھے بانٹ رہے تھے. گئے یہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے دونوں آدمی، اور انہوں نے بھی جا کر کے لینا چاہا. اللہ کے وسلم نے ان کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھا، پھر آپ نے نظر نیچے جھکا لی. یعنی اوپر سے نیچے تک اللہ کے وسلم نے انہیں دیکھا، اس کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں. انشئتما اعطیتکما، اگر تم چاہو تو صدقے کا مال میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب. یہ صدقے کا مال جو ہے اس میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے جو مالدار ہو، اس کو نہیں لینا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر تم لینا چاہتے ہو تو میں دے سکتا ہوں. آپ نے وضاحت کی اور کہا کہ اس میں جو مالدار ہو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، ولا لقوی مکتسب، اور ایسے طاقتور کا بھی اس میں حصہ نہیں ہوتا ہے جو کما سکتا ہے، جس کے ہاتھ پیروں میں اللہ نے طاقت دی ہے. یہ کچھ کم بڑی نعمت نہیں ہے کہ کتنے ایسے معذور ہوں گے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوں گے، جن کے پیر ہی نہیں ہوں گے، جن کے ہاتھ پیر تو ہوں گے لیکن اس میں طاقت نہیں ہوگی، وہ مفلوج ہوں گے. آپ اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنے مضبوط ہاتھ پیر دیے، آپ ان سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنے کی راستہ سکھلایا اور کہا کہ جو کما سکتا ہے اس کو صدقہ زکات کا مال نہیں لینا چاہیے، اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا سوال کرنے والوں سے، بھیک مانگنے والوں کے ساتھ. اسی طرح سے کبھی کبھی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ انسان طاقتور ہونے کے باوجود بھی اس کی ضرورت نہیں پوری ہو پاتی، اسے مانگنا پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک موقع پر اپنے ایک صحابی قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ سے وضاحت کی کہ 3 شخص ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے سوال کرنا جائز ہے. ہوا یہ تھا کہ قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ نے اپنے قوم کے کچھ لوگوں کا جھگڑا چھپانے کے لیے کسی کی ضمانت لے لی. کسی کا لین دین کا مسئلہ تھا اور وہ آدمی نہیں ادا کر پا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ادا کر دیتا ہوں، اپنے اوپر انہوں نے لے لی، لیکن ادا نہیں کر پا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال دیجیے تاکہ میں یہ چکا دوں، جو گویا کہ میں نے دوسرے کا قبضہ اپنے اوپر لے لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ٹھہرو، ابھی میرے پاس نہیں ہے، جب میرے پاس صدقے کا مال آئے گا تو میں تمہیں دینے کا حکم دوں گا. اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آخر میں فرمایا کہ دیکھو اے قبیصہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے سوال کرنا جائز ہے. ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام مال کھاتا ہے. ان 3 قسم کے علاوہ اگر کوئی آدمی مانگ کر کے کھاتا ہے، سوال کر کے کھاتا ہے تو حرام مال کھاتا ہے. اور پھر 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک ایسا شخص جس کے اوپر اتنا زیادہ قرض ہو گیا ہو جو کما کر کے ادا نہ کر پاتا ہو. اور قرض کی 2 شکلیں ہو سکتی ہے، ایک تو آدمی خود قرض لیا ہو،
किसी जरूरत के साथ उसने कर्ज लिया था लेकिन नहीं अदा कर पाया, कर्ज बढ़ गया, ज्यादा हो गया, अब उसकी कमाई इससे नहीं है कि अपनी कमाई से कर्ज को अदा कर सके, तो उस वक्त तक वो सवाल कर सकता है, सदके का माल ले सकता है, लेकर के अपने कर्ज अदा कर दे, उसके बाद फिर ना मांगे। या फिर किसी और का कर्जा था, उसने अपने ऊपर ले लिया, किसी का कर्जा था, उसके खानदान में, उसके रिश्तेदार में, उसके वालिदैन ने लिया था और उनका इंतकाल हो गया, वो चले गए, नहीं दे पाए, अब इस आदमी के ऊपर आ गया, इसे अदा करना है, तो ये अपनी ताकत से नहीं अदा कर पा रहा है, तो ये मांग करके अदा कर सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर जिस पर तावान, जिस पर कर्ज ज्यादा हो गया हो, उसे मांगने की इजाजत दी। दूसरा शख्स वो कि जिसके ऊपर कोई आफत आ पहुंची, आदमी ने कुछ कारोबार था, कमाता खाता था, लेकिन कोई ऐसा सैलाब आया या कोई आग लग गई या कोई हादसा हो गया, जलजला आ गया, उसका घर बार, उसका कारोबार सब तबाह हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं है कि वो अपना खा करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके, तो ऐसा शख्स सवाल कर सकता है, सबसे में से मांग सकता है, मांग करके अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन फिर जब उसके पास हो जाए तो वो मांगना बंद कर दे, हमेशा के लिए मामूल नहीं बना सकता है, उतना मांग सकता है जिससे उसकी जरूरत पूरी हो जाए। तीसरा वो शख्स जिसे इतना फाका हो कि वो उसके माशरे के 3 अक्लमंद लोग गवाही दें कि ये आदमी जरूरतमंद है, इसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कि 3 अक्लमंद लोग उसके बारे में गवाही दें, तो ऐसा शख्स सवाल कर सकता है। इससे एक मतलब और समझ में आया कि अगर कोई आपके पास सवाल करने आता है किसी भी इलाके से, किसी माशरे से, तो आप उससे तौसिया, तस्दीकनामा मांग सकते हैं कि आप इस बात के मुस्तहिक हैं, आपके पास सबूत क्या है, गवाही क्या है, आप अपने इलाके के किसी जिम्मेदार से, किसी इदारे से कोई लेटर लाकर दिखाइए कि आप इस चीज से मुस्तहिक हैं, तब आपको दिया जाएगा। इस हदीस से भी पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त लगाई कि कोई ऐसा आदमी जिसको फाका हो रहा हो, यानी उसके पास खाने पीने का ना हो, भूखा हो, और उसके पास उसके मुआशरे के 3 अक्लमंद लोग गवाही दें कि हाँ ये आदमी फाका कर रहा है, इसके पास नहीं है, तो ऐसे शख्स को सवाल करना जायज। अब फरमाया कि ये 3 किस्म के लोग हैं, एक कर्जदार, और एक किसी आफत का, किसी बीमारी का, किसी मुसीबत का शिकार इंसान जिसकी जरूरत पूरी ना हो रही हो, तीसरा वो आदमी जो फाका कर रहा हो, जिसके बारे में 3 अक्लमंद लोग गवाही दे रहे हो कि ये फाका कर रहा है, यानी इसके पास खाने पीने के लिए नहीं है। ऐसे 3 शख्सों के अलावा आपने फरमाया कि अगर कोई और सवाल करता है तो वो हराम खाता है। तो देखिए अल्लाह के वसल्लम के पास सहाबा जो आते थे अपनी जरूरतें लेकर के सवाल करते थे, तो अल्लाह के वसल्लम सिर्फ यही नहीं कि आप उन्हें देते थे, बल्कि आप उन्हें नसीहत भी करते थे। हमारे पास अगर कोई इस तरह का फर्ज आता है जो बज़ाहिर हमारे सामने देखने में हंसा कट्ठा लग रहा है, लेकिन फिर भी हाथ फैला रहा है, मांग रहा है, तो हमें प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे अंदाज से समझाना चाहिए कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इस बारे में क्या है, आपको उसका खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग माल के इतने हरीस होते हैं, जैसे हर किसी को किसी न किसी चीज की लत लगी होती है कि उसे चीज बहुत पसंद होती है। ऐसे कुछ लोगों को माल की इतनी हिर्स हो जाती है, इतनी हवस हो जाती है कि वो हलाल और हराम की परवाह किए बगैर बस माल जहां से भी आए, चाहे उसके लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगाना पड़े, अपनी खुददारी को, अपनी खुददारी नफ्स को बेचना पड़े, परवाह नहीं करते हैं, बस माल जमा करने की और बढ़ाने की फिक्र होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को सख्त वही सुनाई कि जो मांग मांग कर अपने माल को बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का क़यामत के दिन क्या हश्र होगा। आपने फरमाया मन सअल अन्नासा अमवालहुम तकस्सुरन, जो लोगों से माल मांगता है, सवाल करता है ताकि खूब अपने माल को बढ़ाए, ज्यादा करे, तो ऐसे शख्स फइन्नमा यसअलु जमरन, ऐसा आदमी शोला जमा करता है, आग का अंगारा जमा करता है। ऐसा आदमी गोया कि जहन्नम की आग का अंगारा जमा करता है। फल यस्तक़िल औ यस्तक्सिर, अब उसे चाहिए कि वो चाहे थोड़ा जमा करे चाहे ज्यादा जमा करे, उसके पास जरूरतें पूरी हो रही लेकिन फिर भी लोगों से मांग रहा है, सवाल कर रहा है, तो वो माल नहीं जमा कर रहा है बल्कि वो आग का अंगारा जमा कर रहा है।
अब चाहे वो थोड़ा मांगे या ज्यादा मांगे। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1041 है और इब्न माजा के अंदर भी रिवायत मरवी है, इसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जो लोगों से माल मांग मांग करके जमा करता है, आपने फरमाया कि क़यामत के दिन इस हाल में वो आएगा कि उसके चेहरे पर कोई गोश्त नहीं होगा। जो आदमी लोगों से माल मांग करके जमा करता है, यानी बिला जरूरत मांगता है, मांगने का उसने भिखारीपन का पेशा इख्तियार कर रखा है, तो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर धब्बा होगा। बाद में कहते हैं उसके चेहरे पर गोश्त का कोई टुकड़ा नहीं होगा। उसका गोया कि दुनिया के अंदर उसने अपने इज्जत नफ्स का सौदा किया, अपनी परवाह नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे एक इज्जतदार फर्द बनाया था, एक मुसलमान बनाया था। उसने लोगों से माल की लालच में अपने इज्जत नफ्स का सौदा किया, अपनी खुददारी का सौदा किया, लोगों सामने हाथ फैलाया, लोगों सामने मांगा। क़यामत इस हाल में आए उसके चेहरे पर कोई गोश्त नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर भी लोगों को सिर्फ जुबानी नहीं कि कह करके आपने उन्हें मांगने से रोका, बल्कि अमली तौर पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काम पर लगाया है। तो ऐसे लोगों को जो काम के लायक हो, काम कर सकते हो, उन्हें आप काम करने के तरीकेकार भी सिखला सकते हैं, काम की जरूरत है उन्हें कहीं काम पर भी लगा सकते हैं। जैसे एक शख्स आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने सवाल किया। ये अबू दाऊद की रिवायत है और मुख्तलिफ की रिवायत है। बाद उलमा ने कहा कि ये रिवायत सही है, लेकिन अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को ज़ईफ करार दिया है। और मशहूर वाक़या है कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे कुछ सवाल किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास एक चादर है और एक प्याला है। उस चादर को मैं आधा बिछा लेता हूं और आधा ओढ़ लेता हूं, और एक प्याला जिसमें मैं पानी पीता हूं। यानी इतना कम सामान मेरे पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ ले आओ। गए, वो लेकर आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में लेकर वो प्याला खड़े हो गए, वो चादर और प्याला खड़े हो गए और कहा कि कौन से खरीदेगा? एक तरफ से आवाज आई, किसी ने कहा कि मैं इसे 1 दिरहम में खरीदता हूं। फिर आपने कहा कि 1 दिरहम से ज्यादा में कौन खरीदेगा? एक तरफ से आवाज आई, किसी ने कहा कि मैं इसे 2 दिरहम में खरीदता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में वो दोनों सामान बेच दिया और उस आदमी के हवाले किया और कहा कि जाओ 1 दिरहम से अनाज लो, अपने घर में रख दो, और 1 दिरहम से जाओ बाजार से कुल्हाड़ी लेकर आओ। वो शख्स गए, बाजार से कुल्हाड़ी लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उस कुल्हाड़ी के अंदर दस्ता लगाया लकड़ी का और कहा कि इसे जंगल में लेकर जाओ, इसे लकड़ियां काटो और काट कर ला करके बेचो, और 15 रोज तक मेरे पास मत आना। वो सहाबी गए और इस तरह से करने लगे, यहां तक कि 15 रोज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो 15 दिरहम तो माली बन चुके। उन्होंने अपनी जरूरतें भी पूरी की, कपड़े खरीदे, गल्ले खरीदे, उनके घर में बहुत सामान हो गया। 15 रोज के अंदर उनकी हालत सुधर गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उस वक्त फरमाया और कहा कि देखो, ये जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, ये तुम्हारे हक में इस बात से बेहतर है कि तुम लोगों के सामने हाथ फैलाते और क़यामत के दिन तुम अल्लाह के पास इस हाल में आते कि तुम्हारे चेहरे पर धब्बा होता। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे बचा लिया है। और यकीनन एक इंसान मांग करके जो चीज जिस तरह से खर्च करता है और जिस तरह से अपने नफ्स को मारता है, उसके मुकाबले में अपने हाथों से कमा करके जो खर्च करता है, जिसको अलग खुशी भी मिलती है, उसके नफ्स को भी अच्छा लगता है और वो बड़ी एहतियात से भी खर्च करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने वालों से इस तरह का तर्जुमा इख्तियार किया और इस तरह से आपने उनकी तरबियत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जो भीख मांगने से अपने आप को बचाते हैं, लोग सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, इसे इस कदर बड़ा बतलाया है, ऐसा नेक अमल बतलाया है कि इस पर जन्नत का वादा किया है। ये कोई मामूली अमल नहीं है कि एक इंसान सिर्फ ये ना समझे कि नमाज रोजा पढ़ने पर ही सवाब मिलता है, जन्नत नमाज रोजा पढ़ने पर मिलती है, बल्कि ये भी सब्र का सबसे बड़ा रास्ता है कि एक इंसान ये ठान ले कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह ताला जो कुछ भी देगा अपनी मेहनत मशक्कत से मैं कमा करके उसी में गुजारा करूंगा, लेकिन हाथ नहीं फैलाऊंगा, सवाल नहीं करूंगा। तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जमानत दी।
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम है सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु, गुलाम थे, लेकिन उनकी खुददारी नफ्स देखें। कहते हैं कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और कहा कि कौन है जो मुझे इस बात की जमानत देता है कि वो कभी किसी से सवाल नहीं करेगा, भीख नहीं मांगेगा, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जमानत देता हूं, मैं इस बात का वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की जमानत दी। यह अबू दाऊद की रवायत। इसी तरह से औफ बिन मालिक अशजई रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग 9 या 8 या 7 लोग थे सहाबा में से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम मेरे हाथ पर बैत करोगे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी हम तो आप पर बैत कर चुके हैं, अब किस बात की बैत करें? तो फिर आपने कहा कि क्या मेरे हाथ पर बैत करते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, सहाबा ने उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रख दिया और बैत की, कहा कि तुम इस बात का वादा करो कि अल्लाह की इबादत करोगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, नमाजों की पाबंदी करोगे और अल्लाह का हुक्म मानोगे। और एक बात आपने धीरे से उसे कही कि किसी से कोई सवाल नहीं करोगे, किसी से कोई चीज मांगोगे नहीं जिंदगी भर। औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह कहते हैं कि वो सारे सहाबा जो थे जिन्होंने अल्लाह के वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैत की थी, उनका मामूल ये था कि जिंदगी में कभी किसी से कोई सवाल नहीं किया। यहां तक कि भीख मांगना, अपने जरूरत के लिए सदके का सवाल करना, खैरात का सवाल करना तो दूर की बात है, अगर वो घोड़े पर बैठे रहते थे और उनका कोड़ा जमीन पर गिर जाता था तो घोड़े से उतर कर अपना कोड़ा उठा लेते थे, किसी से ये नहीं कहते थे कि मेरा कोड़ा उठाकर मुझे पकड़ा दो। इस तरह से वो उसका पास याद रखते थे और जिंदगी उन्होंने किसी से सवाल नहीं किया, इतना भी सवाल करना दोबारा नहीं किया कि मेरा कोड़ा जमीन से उठाकर मुझे पकड़ा दो। उन्होंने सोचा कि अगर ये हम किसी से मांगेंगे तो ये भी एक हेल्प हो जाएगा, एक मदद हो जाएगी। इस कदर सहाबे किराम एहतियात करते थे। इसी तरह से एक सहाबी है हकीम ने हिजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के वसल्लम के पास एक बार आए और सवाल किया, अल्लाह के वसल्लम ने उन्हें दिया और उसके बाद फरमाया कि हकीम, ये हकीम ने हिजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ये मौलूद खाने काबा है, इनकी पैदाइश खाने काबा के अंदर हुई और इनको 120 साल की उम्र मिली थी। 7 साल इन्होंने जहालत में गुजारे थे और फिर इस्लाम कबूल किए तो 7 साल इस्लाम में गुजारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के वसल्लम ने दिया और उसके बाद फरमाया कि हकीम, ये माल बड़ा मीठा है, बड़ा सरसब्ज है, जो इसे दिल के ग़िना के साथ लेता है तो इसमें बरकत दी जाती है और जो दिल के लालच के साथ इसे कबूल करता है इसमें बरकत नहीं दी जाती। और जो मांगने से बचना चाहता है तो अल्लाह उसे बचा लेता है। अब फरमाया कि इस माल की हालत वैसे ही है, ऐसी बीमारी की तरह से है कि इंसान खाता है और आसूदा नहीं होता है। और फिर आपने कहा कि याद रखो, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाले बनो, लेने वाले न बनो। उन्होंने कहा मतलब मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी किसी सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजर गया, उन्होंने कभी किसी सवाल नहीं किया, यहां तक कि अल्लाह के वसल्लम बुलाते थे देने के लिए तो नहीं लेते। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का जमाना आया खिलाफत का, उनके जमाने खिलाफत में जो माल गनीमत बढ़ता था उसमें जो हिस्सा सहाबा का निकलता था वो देने के लिए बुलाते थे, लेकिन इनकार कर देते थे, मुझे नहीं चाहिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत आया, उन्होंने बुलाया कई बार कि ऐ हकीम ने हिसाब आओ और अपना हिस्सा माल गनीमत में से ले लो, उन्होंने इनकार कर दिया, कहा मुझे नहीं चाहिए। यहां तक उमर फारूक और लोगों के दरमियान खुलकर ऐलान करना पड़ा कि ऐ लोगों तुम गवाह हो, देखो हकीम को मैं बुलाता हूं माल देने के लिए लेकिन नहीं लेते। इस तरह से सहाबा किराम सवाल से बचते थे। लेकिन आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें, आप देखें लोग किस तरह से अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग तरह तरह की नकली बन करके आते हैं और मांगने का पेशा अख्तियार करते हैं। यहां तक कि बार दफा उनकी जरूरत भी नहीं रहती है और मांगने का पेशा अख्तियार करते हैं। यहां तक कि बाद लोगों ने तो कहा कि जैसे देने वाले को सवाब मिलता है ऐसे लेने वाले को सवाब मिलता है। मैंने कहा ये गलत तालीम है, ये कहीं इस्लाम के अंदर ये तालीम नहीं दी गई कि लेने वाले को सवाब मिलता है। देने वाले को सवाब मिलता है लेकिन लेने से बचने वाले को सवाब मिलता है, उसके लिए जन्नत की जमानत दी गई। अभी इतवार के अखबार में मैंने पढ़ा कि यही आपके बंबई के अंदर एक ऐसा भिखारी है कि जिसने भीख मांगने का पेशा तैयार कर रखा है, यहां तक कि महीने का 70-75 हजार रुपये महीना कमाता है।
1,20,00,000 का फ्लैट खरीदा है और उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, कई उसकी 2 दुकानें हैं, दुकानों का 30,000 भाड़ा आता है, और इसी तरह से उसके घर वाले स्टेशनरी वगैरह की दुकानें चलाते हैं मुंबई के अंदर, लेकिन अभी भी वो भिखारी का पेशा अख्तियार करके बैठा और नहीं छोड़ता है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं माशरे के अंदर। लोगों को चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमती सतह पर ऐसे लोगों का इलाज किया जाए और उनकी इस्लाह की जाए, और मुसलमानों को चाहिए कि अपने ज़कात के सिस्टम को, निजाम को सही करें, दुरुस्त करें, ताकि इस तरह के लोगों से माशरे को पाक किया जाए जो बिला जरूरत लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। जो इस्लाम का तरीके ज़कात है, निजाम है ज़कात का, वो सबसे बेहतरीन सिस्टम है। उसको अगर लागू किया जाए, उसको अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो ये नौबत ही ना आए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नमूने को इख्तियार करने की तौफीक फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।